some spiritual awakening facts. So, yeah, I so much wanted to, discuss some facts around here, you know. Or rather, I should not say facts, I should say, when you really awaken, you start to seeing things, and it just it just overwhelms you, you know. Awakening really overwhelms you. Maybe that should be the title of this video. Awakening overwhelms you and what to do. So yeah. So I've always been the person who has seen more, who has always dared to see the depth. तो मैंने हमेशा डेप्थ देखने की कोशिश करी है, हमेशा बाहर भी और अंदर भी. I've always been that person. I've always been 10x sensitive. Why am I 10x sensitive? Am I different from other people? No, I am not. It's just that people have really closed on their sensitivity. ठीक है, उन्होंने बाहर भी सेंसिटिविटी को क्लोज कर रखा है, बाहर दूसरों के प्रति भी, और towards their own self. So yeah. Yeah, so I've always been the person जो extra sensitive रही है हमेशा से ही. I have never closed my heart ever, or maybe I would have, but the overall that I see, I haven't ever, as far as I remember. I mean, yes, while I was growing up, some traumas really just, closed my heart to the world, but then my life became really stagnant. And when it became really stagnant, that was the most painful, because I had 10x sensitivity, so I could always feel the pain of ignorance as well. So people don't really allow themselves the pain of ignorance. People don't allow themselves the pain of, the pain of the reality right now, in which we live. People don't allow themselves all that. I don't know, I just so much wanted to come here and discuss some of the facts here, because I see so many things and it just overwhelms me, and I just felt कि यार इसे तो बताना चाहिए, इसे तो डिस्कस करना चाहिए यार, ऐसे नहीं. सबसे स्टूपिड आइडिया जो मुझे लगता है, is that the matrix programs us into separation. Matrix हमें प्रोग्राम करती है towards separation, towards comparison. हमें comparison करना सिखाती है, हम compare करते हैं एक दूसरे के साथ, and that is the most stupid idea. That is the most stupid idea. compare करने का मतलब पता है क्या है, कि आप दूसरे के अंदर भगवान देख रहे हो. इससे ज़्यादा अज्ञानी और कौन ही होगा. आई डोंट नो मैं अपनी बातें कितना एग्जाम्पल के साथ और कितना इन डेप्थ समझा पाऊँगी, बट ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज फील द एनर्जी विद व्हाट आई एम सेइंग. मैं जो भी बोलती हूँ, आई ऑलवेज से इट विद एन एक्सपीरियंस एंड यू फील इट. I don't read scriptures and tell you. When you say something from your own experience, something that you've really realized, you feel that energy. तो आप वो energy feel कर सकते हो. If she is saying from that standpoint, if she is saying with that weight or not, what she is saying has some weight or not. There are people who give speeches on podiums, and आपको हर किसी की स्पीच अच्छी नहीं लगेगी. कोई लोग दिल से बोलते हैं तो उनकी स्पीच समझ आती है. It's just that. So comparison एक बहुत ही stupid idea है. Jealousy तो एक बहुत ही stupid चीज़ है करने के लिए. कभी कभी मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ओवरवेल्म करती है यार.
इट फील्स लाइक इतना सब कुछ मुझे मत दिखाओ, प्लीज़ मुझे इतना सब कुछ मत दिखाओ, कभी कभी से फील होता है। आई मीन मुझे कोई दिखा नहीं रहा है, बट द पेन ऑफ अवेकनिंग, दैट्स द पेन ऑफ अवेकनिंग। मैं खुद ही देख रही हूँ, मैं खुद ही चूज़ कर रही हूँ, but emotionally, mentally, sometimes like I'm like, I don't want to see that, I don't want to see that, but I don't want to get into ignorance either. So yeah, this is better, this is better. you know Numbing myself in ignorance is far more worse than the pain of awakening. I will choose the pain of awakening. I will choose to feel something than to not feel anything. Ignorance just makes you numb. Have you not seen people just going about their life, you know, the way they interact with trees, the way they interact with children around them, the way they interact with life around them? Have you seen how कुछ लोग देखो आप, you know, कोई एक हाई सोशल स्टेटस या कोई हाई सोशल रैंक में आया तो उनका बिहेवियर कैसे एकदम चेंज हो जाता है, और वही लोग जब ट्री से पत्ते तोड़ रहे होते हैं, कोई स्टेम तोड़ रहे होते हैं, तो उनका बिहेवियर देखना चाहिए यार, जैसे उनका बाप का ट्री हो। दे वुड जस्ट लैश आउट ऑन दैट ट्री, जैसे ही हैज़ ओन दैट ट्री, like that tree was made to give him leaves, or that tree was made to give him that stems. So मुझे लगता है मुझे वो एक दिन मैं ऐसे इंसान बन जाऊँगी अगर मैं इफ़ आई क्लोज ऑन माई सेंसिटिविटी, इफ़ आई क्लोज ऑन सेंसिटिविटी। बहुत it's a painful thing to carry, it's a painful thing to carry a big heart in the world, and everyone has a big heart. It's just that people have really squeezed it because they don't want to feel the pain, because they are so much governed by their mind is something जो माइंड एक ऐसी चीज़ है जो कंफर्ट ढूंढता है, ठीक है, लेकिन सोल जस्ट वांट्स टू बी फ्री, लिबरेटेड। सामने तुम चॉकलेट रख दो या सामने तुम करेला रख दो, बिटर गॉड रख दो, समथिंग बिटर यू कीप और समथिंग स्वीट यू कीप, इट सोल वांट्स टू माइंड विल ऑलवेज पिक अप द स्वीट, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हो तो आप हमेशा स्वीट एंड कम्फर्ट को पिकअप करोगे, डेजर्ट को कम्फर्ट करोगे, but the soul, it's liberated, okay, and it is into some divine purpose, it wants to live, and it will only dare to choose the bitter almond, bitter god, या फिर bitter आंवला, कुछ भी, something that is bitter. So yeah, I think pain of awakening is so much better, than the pain of ignorance, for sure. And I don't think so ignorance में pain है, ignorance में people, I know, मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ यार, लोग कैसे पतली गली से निकल जाते हैं, they manipulate things, they are very clever, they are very manipulative, they have given up on their innocence, and they get very clever minded, and yeah, they do all the tactics, उस गटर में फंसे रहने के लिए वो इतना एनर्जी लगाते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं, दे गिव अप ऑन देयर इनोसेंस, और ये बचपन से देखती आ रही हूँ मैं। एंड sometimes, of course, I have real, when I was young, I really used to think I'm stupid, yaar. I am stupid that I can't do all these manipulative things. I am really stupid that, I cannot be this clever, but of course things have changed when I've really walked my spiritual journey, पता नहीं, मुझे अंदर से कभी अलाउ ही नहीं हुआ that I do those things. और अब मुझे हंसी आती है, हंसी तो नहीं आती सच बोलूँ तो, I feel pain कि यार लोग कितने अज्ञानता में जी रहे हैं। और आज भी बस बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि यार उन्होंने तो they were clever and they just made it,
you know, and we were stupid for not being clever, and we could just never make it, you know. And I tell them, you wait for the long term, you wait till you know, you wait till the long road really appears in front of you. तुम लॉन्ग टर्म में हमेशा इस चीज़ को रिग्रेट नहीं करोगे, यू नो. सो लोग इतने क्लेवर माइंडेड और ये सब होते हैं, एंड यू नो इतने टैक्टिक्स अप्लाई करते हैं टू स्टे इन द गटर. बट व्हाट इफ दे सरेंडर्ड कि यार मेरे को ये नहीं करना है, यू नो, देन लाइफ वुड हैव रियली शोड देम, यू नो. बहुत सारे पोस्ट पढ़ती हूँ यार इंस्टाग्राम पर, यू नो, ये लिखा होता है कि यू नो फेरी टेल्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, एंड पता नहीं ऐसे कुछ लिखा होता है नेगेटिव. वो मैं इसलिए लिख कौन रहा है? ये वो लोग लिख रहे हैं जिन्होंने खुद कभी लाइफ में रिस्क नहीं लिया है, बिकॉज मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं है, ठीक है. हाँ, आई डोंट नो आपकी फेरी टेल का आइडिया क्या है. बट मुझे अपने फेरी टेल के बारे में बात भी नहीं करनी है. बट या मेरी फेरी टेल का आइडिया वॉज गॉड ऑलवेज एंड मैजिक. एंड आई न्यू समवेयर कि यार लाइफ इतनी लॉजिकल नहीं है और लाइफ इतनी बोरिंग नहीं है जितना ये हमें स्कूल्स पढ़ा रहे हैं या फिर जितना हमें ये अडल्ट समझा रहे हैं, यू नो. कहीं ना कहीं अंदर से तो मुझे ये सब पता था, बट थोड़ा टाइम लग गया इस चीज़ को ट्रस्ट करने में और रियली देखने में. खैर, हमारा टॉपिक क्या था यार वीडियो का? मतलब टॉपिक ही भूल गई. शख्स मैं तो टॉपिक ही भूल गई यार बातें करते. हाँ, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको बहुत ओवरवेल्म करती है. एग्जैक्टली मुझे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे. यस, कंपैरिजन पे डिस्कस करना था कि लोग कंपैरिजन में, सेपरेशन में, यू नो, कितना टाइम वेस्ट करते हैं और मुझे बहुत स्टूपिड लगता है. पता है मैंने क्या देखा है कभी कभी कि बहुत, यू नो, वैसे तो आजकल बहुत कम रह गए हैं प्योर सोल्स. हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स अब बढ़ेंगे. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते हैं, बट प्योर सोल्स होते हैं. एंड कई बार मैं देखती हूँ प्योर सोल्स की वजह से, यू नो, दे आर कभी कभार मैं देखती हूँ कि यू नो आपको पता है लाइफ बहुत डीपली एग्जिस्ट करती है, सोल लेवल पर एग्जिस्ट करती है. लाइफ बहुत डीपली एग्जिस्ट करती है, लाइफ बहुत सोल लेवल पे एग्जिस्ट करती है. बट मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ कि कुछ प्योर सोल्स होते हैं एंड यू नो उनकी एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ, सच में ये बात बहुत सच है. अच्छा, आपने ये अगर आप हिंदू हाउस होल्ड में हो या फिर यू नो इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, आपने ये ज़रूर सुना होगा, यू नो दैट, यू नो, कुछ
कुछ लोग लक्ष्मी होते हैं, मीन वो अपने साथ, दे ब्रिंग अबंडेंस, घर की बेटी लक्ष्मी होते हैं, समथिंग लाइक दिस, यू माइट हर्ड इट, राइट? कुछ लोगों की एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ, बिकॉज दे आर सो प्योर सोल्स. अच्छा, मैं आपको ये एक और अच्छी एग्जांपल समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव सीन, कि आपने देखा ही होगा, काऊ को देखा होगा, सो आई थिंक एक बार सदगुरु ने भी बताया था, और ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है. ऑल्सो सीन काऊ क्राइंग, और उन्होंने भी ये बताया था ये बात कि जब काऊ रोती है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ना इमोशंस को प्रोसेस कर रही है. अगर वहाँ पर उस स्पेस में कुछ गलत हुआ है या फिर कुछ बहुत नेगेटिव रहा है तो वो प्रोसेस करती है और वो रोती है. इट वॉशेज अवे, इट प्योरीफाइज दैट स्पेस, इट प्योरीफाइज दैट नेगेटिव इमोशंस. तो अगर घर में कुछ गलत हुआ है, तो जिनके घरों में गायें होती है, जिनके घर में कुछ गलत हुआ है, तो वो स्पेस को प्योरीफाई करेगी काऊ. And even many people I've heard saying that, pets usually do that. Pets usually जो होते हैं वो ह्यूमन इमोशंस को, उनके ओनर के इमोशंस को, वो प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस खुद कई बार अपने इमोशंस को नहीं कर पाते हैं, तो पेट्स डू दैट फॉर देम. इफ़ यू सी ट्रीज़, अगर आप ट्रीज़ को देखो तो ट्रीज़ कितने अबंडेंट होते हैं यार, और लाइफ फॉर्म कितनी, ट्रीज़ गिव यू शेड, ट्रीज़ गिव यू फ्रूट्स. अगर आप एग्जैक्टली पूरे वर्ल्ड को देखो तो कैसे जब ये अपनी नेचुरल स्टेट में होते हैं, व्हेन दे हैव रियली प्योरीफाइड देमसेल्व्स, जब वो सच में ईगोलेस स्टेट में है, एक एप्पल ट्री में कभी ईगो नहीं होता है. फॉर एग्जिस्टिंग एज एन एप्पल ट्री, इट इज़ सो मच, it is so much devoid of ego, right? वो कभी नहीं बोलता है कि यार मैं इसको एप्पल नहीं दूंगा या उसको एप्पल नहीं दूंगा. it just gives apple, it's just being love, it's just being love. तो जब आप अपने आप को प्योरीफाई कर लेते हो, जब आप अपने आप को मेंटली एंड इमोशनली प्योरीफाई योरसेल्फ, देन आप बहुत नेचुरल स्टेट में आप आस पास, इन को एग्जिस्टेंस यू विल ऑलवेज बी दैट लव, और लोगों को, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, मैं बहुत सारे लोग ऐसे देखती हूँ, बहुत ऐसे प्योर सोल्स होते हैं जो, अगर वो प्योर सोल्स जिनकी लाइफ में होते हैं ना, वो चाहे खुद थोड़ा बहुत सफ़र कर रहे होंगे चीज़ों में एंड एवरीथिंग, बट आस पास उनके सारे लोग, दे वुड हैव मेड इट समथिंग और द अदर इन द लाइफ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी, लाइफ एनर्जीज़ को भेजते हैं सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, दे आर बीइंग दैट लव, क्योंकि वो बहुत प्योर सोल हैं, वो बहुत इनोसेंट सोल्स हैं, उनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, वो नेचर के हिसाब से को एग्जिस्ट करते हैं, जो नेचर ने उनके लिए डिसाइड किया वो वैसे को एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो नेचर ने उनके लिए जो डिसाइड किया है वो है कि टू एग्जिस्ट, and to exist in harmony with things around them, to exist in harmony with people around them, and they exist like that. ठीक है, और मैं देखती हूँ कि ये प्योर सोल्स जो होते हैं तो इनके आसपास के बहुत सारे लोग ना बहुत अच्छा करने लग जाते हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, और दे खुद कई बार सफ़र कर रहे होते हैं लाइफ में, विच इज़ फाइन, स्टेजेस पे होते हैं सब अपनी अपनी लाइफ में, तो खुद कई बार कर रहे होते हैं वो अपनी लाइफ में सफ़र. एंड कई बार मैंने ये भी देखा है कि वो प्योर्स, और लोगों को पता ही नहीं होता है कि इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट प्योर सोल इन देयर लाइफ. लोगों को बिल्कुल ये अंदाज़ा ही नहीं होता. लोग इतने ब्लाइंड हो चुके हैं, वो लॉज ऑफ यूनिवर्स को समझते ही नहीं है. एंड इट इज़ जस्ट सो पेनफुल टू सी दैट, and sometimes I see that people are jealous of that same pure soul, जो उनके लिए exist कर रहा है. People have completely lost the sensitivity.
एंड ट्रस्ट मी, ये सेंसिटिविटी सिर्फ बाहर के लिए नहीं, उन्होंने अपने लिए भी वो सेंसिटिविटी खो दी है, and it just pains me and just makes me so overwhelmed. Spiritual awakening is a really overwhelming thing, क्योंकि आप इतना कुछ देखते हो, समझते हो, और इतना बुरा लगता है आपको, कभी कभी आपको बुरा लगता है यार कि इतने कुछ जो वैसे ही बहुत रेयर होते हैं, और जो रेयर होते हैं वो इतना दे आर डूइंग इट फॉर द वर्ल्ड अराउंड देम, फॉर पीपल अराउंड देम, और वो लोग कभी कभी लगता है वो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं। चलो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो लोग ये डिज़र्व नहीं करते हैं, बिकॉज़ क्योंकि जो भी डिसाइड होता है वो बहुत ही डीप लेवल पे डिसाइड होता है, ठीक है, और आई एम नोबडी टू क्वेश्चन दैट, nobody is there to question that, but yeah, spiritual awakening is really painful because you see a whole lot of things, and that whole lot of things make you so overwhelmed. मैंने कई बार देखा है वो लोग जो उसकी एनर्जी से ही अपनी लाइफ को अबंडेंट कर रहे होते हैं, वो उससे जेलस हो रहे होते हैं, या फिर आर नॉट रेडी टू गिव इट बैक टू दैट प्योर सोल, वो उसकी एनर्जी, क्योंकि वो तो अपनी अबंडेंट स्टेट में, वो अपने नेचुरल स्टेट में जा चुका है, ठीक है, वो ईगोलेस हो चुका है, वो अपनी प्योरीफाई स्टेट में आ चुका है, ठीक है, सो ही वो जहाँ भी एग्जिस्ट करेगा ना, वो एक बहुत ही अबंडेंट है, तो उसकी लाइफ एनर्जीज जिसके साथ भी जुड़ेंगी ना, एक स्पिरिचुअल पर्सन की लाइफ एनर्जीज जिसके साथ भी जुड़ेंगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा उनको बहुत मिलेगा लाइफ में, बहुत मिलेगा उनको लाइफ में। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वाई स्पिरिचुअल पीपल आर प्राइसलेस। और आसपास के लोग जो अपनी ईगो स्टेट में हैं, जो अभी अवेकन नहीं हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी प्योरीफाइड स्टेट में नहीं हैं, राइट, सो दे बिकम रिसीवर्स एंड रिसीवर्स एंड रिसीवर्स, only receivers, and it's really painful to see that, it's really painful to see that, जब आप ये सब चीज़ें देखते हो तो आप बहुत it just overwhelms you, it just makes you, puts you into a lot of pain कि यार बट कहते हैं ना, लाइफ अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, सो जस्टिस होती है, और जब जस्टिस होती है तो अच्छी जस्टिस तो नहीं होती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ़ यू आर अराउंड प्योर सोल्स, और इफ़ यू आर अराउंड पीपल हु आर रियली गुड, पहली बात तो आजकल लोग ऐसे इंसान पे बिलीव ही नहीं करते हैं, इफ़ समबडी इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कुछ ऐसे प्योर सोल्स होते हैं विच वो आर वेरी गुड टू बी ट्रू, तो आसपास के लोग उसे और पोक करते हैं कि अच्छा ये इतना अच्छा बन रहा है, ये इतना अच्छा इंसान है,
let me just let me just test him and see, experiment and see. और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स ना लोग उनके ऊपर नहीं करते हैं जो हु आर लिटिल इन नेगेटिव एनर्जी. जो लोग थोड़े पॉजिटिव एनर्जी में महसूस करते हैं ना वो, और उनको महसूस तो हो जाता है ऑन अ डीप लेवल कि दिस पर्सन इज़ अ नाइस पर्सन, दिस पर्सन इज़ अ वेरी प्योर सोल. बट उनकी ईगो जो होती है ना, ईगो वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो खुद ट्रॉमा में रह रहे हैं. सो दे वॉन्ट अदर्स ऑल्सो टू सफ़र एंड बी इन ट्रॉमा. ये कैसे खुश है यार, ये इसने कैसे अपनी इनोसेंस नहीं खोई, सो वो उसको और टेस्ट करते हैं, तो दे विल रियली पोक एट दैट पर्सन, दे विल रियली ट्राई टू टेस्ट, is this person really too good to be true, so सब चीज़ें तब बदलती हैं जब स्पिरिचुअल पर्सन या जो एक प्योर सोल होता है, जिस दिन वो अपनी वर्थ और अपनी प्राइस पहचानता है, दैट इन इटसेल्फ इज़ वो एक बहुत अलग नज़ारा होता है, वो बहुत अलग चीज़ होती है. स्पिरिचुअल पर्सन क्या होता है? स्पिरिचुअल पर्सन वो होता है जो 4 घंटे मेडिटेशन करता है, जो पूजा पाठ करता है, आई डोंट नो व्हाट. अ पर्सन हु हैज़ प्योरिफाइड हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन. बहुत सारे लोग आ जाते हैं यार कमेंट्स में लिखने के लिए. आई डोंट नो, किसी ने मेरे कमेंट में लिखा, चाहे उसने, मुझे नहीं पता किसने लिखा, बट किसी ने लिखा दैट कर्मा इज़ नॉट रियल, एंड मे बी दैट पर्सन इज सीइंग दिस वीडियो, आई डोंट नो. बट ये कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं कर्मा इज़ नॉट रियल? तुमने रिस्क कितनी लिया लाइफ में, तुमने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कितनी जिया लाइफ में, तुमने देखा क्या लाइफ में, और तुम ये बोल रहे हो कर्मा इज़ नॉट रियल. लोग डेप्थ में देखते ही नहीं हैं, ऊपर से सुपरफिशियली देखते हैं और आके बोल देते हैं फेरी टेल्स डोंट एग्जिस्ट, अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है. और अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है. मेरे साथ भी ऐसा होता था. आई वॉज वेरी सेंसिटिव इवन एज अ किड, तो मेरे पेरेंट्स क्विकली आइडेंटिफाइड मी. And of course parents जैसे होते हैं वैसे होते हैं, they're very caring, they get fearful, they're very protective. Of course it's their first time being parents as well, but मुझे ऐसा लगता है to be parents is to be to be in love with somebody is to be brave. आप अपने फियर में उस बच्चे की लाइफ रोक नहीं सकते हो. सो खैर, सो मेरे पेरेंट्स को भी ऐसा लगता था, मतलब दे हैड अ काइंड ऑफ रिएक्शन दैट दे बिकेम वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स मी. तो मुझे लगा कि यार इट्स अ वीकनेस, सेंसिटिविटी इज़ अ वीकनेस, दे नेवर सेड इट टू मी, बट इट्स अ वीकनेस समवेयर. एंड ऑफ कोर्स मैंने बाहर वर्ल्ड भी देखा, तो यस लोग यही सोचते थे. किसी ने मुँह पे बोला नहीं या किसी ने ऐसा कुछ बोला, बट of course I can subconsciously understand how people feel, and they really felt that sensitivity is stupidity, innocence is stupidity, but they wanted me to be rough, tough, and everything. But maybe sensitive, I am sensitive, and I was always made to heal people around me, or I was made to heal life around me. I'm not even saying people, I'm saying I'm always made to heal life around me. That is who I am on a core level. And it's stupid to compare me to other people who are not sensitive. Yeah, so बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग फैक्ट्स मैं देखती हूँ, एंड आई जस्ट फील सो सैड टू सी सच थिंग्स इन लाइफ. बट यस, जो चीज़ें मैंने बताई, दैट्स जस्ट हाफ द स्टोरी.
you know, the other half of the story, you know, is I mean world is a, मुझे नहीं पता जो लोग ईगो में I don't know, it's very painful to have a third eye sometimes, but yes, justice exist तो करती है. Shiva is a symbol for justice. And he is the protector of, you know, these souls, you know, these pure souls, you know, जिसकी एनर्जी पे बाकी सब अपने बंगले, मकान और गाड़ी खड़ी करते हैं, you know, अपनी ईगो में, you know, जिसकी एनर्जी यूज़ करके वो इतने अंधे हो जाते हैं कि वो अपने ट्रॉमा में, अपने ही डर में इतने अंधे हो जाते हैं कि सामने वाले की प्योरिटी देखना ही नहीं चाहते. कुछ लोग को तो दिखती ही नहीं है, कुछ लोग डम होते हैं और कुछ लोग और भी डम होते हैं जो देख कर भी देखना नहीं चाहते. ऐसा नहीं किसी को पता नहीं होता, सबको पता होता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, बट दे डोंट वांट टू सी इट. वो अपने आप को मेंटली और इमोशनली, यू नो, वो अपने आप को मेंटली और इमोशनली कन्विंस करते हैं कि यार दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू. You know, they would poke at that person, they would try to test him or test her, you know. But justice exist करता है, fairy tale exist करती है और कर्मा exist करता है, ठीक है. शिवा exist करते हैं, इसलिए ये सब exist करता है. So yeah, I don't know, just so much. मुझे नहीं पता था आज ये मैसेज आने वाला है मेरी वीडियो में, बट यू नो, I really felt my eyes were little, you know, teary when I was saying all of this. So first time in my life कोई वीडियो कर, मतलब एक बार वो सेक्सुअल ट्रॉमा वाली करी थी ना, हाउ आई डेल्ट विद माई सेक्सुअल ट्रॉमा, उसमें भी आई लिटिल बिकम अ टीयरी आई, और एक सेकंड वीडियो जिसमें आई एम बिकमिंग अ लिटिल टीयरी आई. मुझे भी नहीं पता था कि मैं आज इस वीडियो में ये सब बताने वाली हूँ. पता नहीं, मैं कुछ और ही सोच के आई थी, कुछ और मुझे भी अभी भी नहीं पता मैं इसका टाइटल क्या देने वाली हूँ. आई थिंक यही टाइटल आई शुड कीप, दैट यू नो, सम स्पिरिचुअल अवेकनिंग फैक्ट्स, you know, that are too overwhelming. So the pain of awakening, this is the pain of awakening. आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, समझते हो, एंड आप कुछ नहीं कर सकते हो. I mean, आप ऐसा नहीं आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट आप बहुत कुछ कर सकते हो. ये भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग फैक्ट है, आप बहुत कुछ कर सकते हो. एंड आई ट्रूली मेंट इट व्हेन आई से दैट. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.